آپ کو بتائیں بہاولپور میں سردی کی شدت بڑھتے ہی ایل پی جی کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ مارکیٹ میں گیس کا سرکاری نرخ 208 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ایل پی جی 220 روپے تک فروخت۔ 2446 روپے والا گھریلو سلنڈر 3100 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے بہاولپور میں سردی کی شدت بڑھتے ہی ایل پی جی کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ مارکیٹ میں گیس کا سرکاری نرخ 208 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ایل پی جی 220 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ 2466 روپے والا گھریلو سلنڈر 3100 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے طاہر جودیانہ نے جوائن کیا ہے۔ طاہر بتائے گا۔ جیسے سردی کی شدت بڑھتی ہے ایل پی جی گیس کی جو طلب ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، اور جیسے طلب بڑھتی ہے تو ساتھ میں ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ فلکچویٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم بہاولپور کی بات کرتے چلیں تو شہری جو ہے وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جو سرکار نے نرخ مقرر کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ریٹ جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر چھوٹا تاجر جو ہے، چھوٹا طبقہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 کلو گیس استعمال کرتا ہے، وہ بھی یہی شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ گیس جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے، اور ریٹ سرکار کا جو مختص کیا گیا ہے اس پر ریٹ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں ہر قیمت پر اس کا مقرر شدہ جو ہے ریٹ اس پر گیس مہیا کروائے۔ تو یہ شکوہ جو ہے لے کر ہم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پاس پہنچے ہیں ایل پی جی کے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، گیس جو ہے وہ کیوں سرکاری نرخ پر فروخت نہیں ہو پاتی۔ آپ بتائیے گا جی، اس معاملے پہ کس کا جو ہے ذمہ آپ لگائیں گے کہ کس وجہ سے جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، سرکاری نرخ پر فروخت نہیں ہو رہا؟ ذمہ تو صرف اور صرف اونلی امپورٹرز ہیں، کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کو جس ریٹ پہ گیس آنی ہے اسی ریٹ پہ سیل ہونی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ڈی سی او فرحان صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے کچھ بیٹھ کے اپنے معاملات ڈسکس کیے تھے۔ اس وقت پلانٹ ریٹس جو ہیں وہ 3000 سے اوپر ہیں، اور جبکہ ایل پی جی کا جو ریٹ سرکار نے دیا ہے وہ 2300 کچھ روپے۔ یہ صرف لوکل کا ریٹ ہے جو ہمیں دیتے ہیں، امپورٹ کا ریٹ نہیں دیتے۔ یہ امپورٹ کا ریٹ دیکھیں تو وہ تو 3000 پلس میں ہی کاسٹ کرے گی، تو اس حساب سے اس نے بکنا ہے۔ اسے سیل کرنے میں 4-5 چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو ہمارا مارجن آج سے 7 سال پہلے تھا وہ مارجن وہ بھی آج ہی وہی مارجن چل رہا ہے، جبکہ اس ریٹ میں دیکھیں آپ بجلی کا بل، رینٹس، لیبرز، ہر چیز کو ملا کے دیکھیں تو وہ مارجن کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ڈی سی او صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے لاسٹ ٹائم جو بیٹھ کے ساری چیزیں ڈسکس کی تھی، اس وقت پلانٹ ریٹس تھے 2550 روپے، اور ہمیں ڈی سی او صاحب نے جو مارک کر کے دیے تھے 280۔ اب 3000 ہے، اس کے حساب سے 320 سے 330 روپے ریٹ بنتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ جتنا کم سے کم ریٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگ سیل کر رہے ہیں۔ یہ اس چیز کو کم سے کم دیکھا جائے کہ جو ریٹ بنایا جائے وہ لوکل اور امپورٹ کو مکس کر کے بنایا جائے، کیونکہ 75% ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور 25% پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے۔ 25% کے ریٹ کے اوپر تو پورے پاکستان کا ریٹ نہیں چل سکتا نا جی۔ اس کم سے کم اس چیز کو دیکھا جائے۔ اور اس کے بعد ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ جو ایک رینٹ تھا ایک بوزر کا پر ٹن کا، وہ 10,000 روپے پر ٹن تھا، لیکن اب وہ 20,000 روپے پر ٹن پہ چلا گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر بیٹ پہ جو نا ہر بوزر والا جو ہے 10 سے 15,000 روپے جرمانہ بھر کے آ رہا ہے۔ وہ ہڑتال بھی پچھلے تقریباً 4-5 دن چلی، پھر وہ 14 دن تک ایکسٹینڈ ہوئی۔ کراچی سے جو بوزر بہاولپور پہنچتا ہے وہ کم سے کم 50 سے 60,000 روپیہ جرمانہ پے کر کے آ رہا ہے۔ وہ کاسٹ انہوں نے ایل پی جی پہ ڈالنی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب عام شہری جو ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ سرکار نے نوٹیفکیشن نکالا دسمبر کا کہ 208 روپے فی کلو گیس ہے، وہ تو آپ سے یہ تقاضا کرے گا 208 کا، اس کو کیا پتا یہ ساری پیچیدگیوں کا؟ یہ سارا دن یہی معاملات چلتے ہیں جی، لوگوں کو بتا کے تھک جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ تقاضا تو یہی کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں کہیں بھی یہ ریٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے۔ میں حقیقت بتاؤں، نہ پورے پاکستان میں سرکاری ریٹ پہ گیس بک رہی ہے۔ کم سے کم جو ریٹ چل رہا ہے وہ 310 اور 20 روپے چل رہا ہے۔ بعض علاقوں میں تو یہ 350 روپے بک رہی ہے، پہاڑی علاقوں میں یہ 400 روپے کلو بک رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم طور پر رکھا جائے اپنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے گیس پلانٹ سے سستی ملنا شروع ہوگی، ہم بھی گیس مارکیٹ سستی کر دیں گے۔ جس طرح تمام پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں، امپورٹ اور لوکل جو ریٹ ہے اس کو مکس کر کے پاکستان کا جو مقامی سطح پر ریٹ ہے وہ نکالا جائے، اور ساتھ ساتھ جو جرمانے ہو رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں، اور جو یہاں پر مارجن کا ذکر کیا گیا کہ 7 سال پہلے بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، تو اس والے سے خدشات جو ہیں ایل پی جی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وہ بھی سامنے رکھے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سرکاری نرخ جو ہے اس پر ریٹ جو ہے منو عمل درآمد کروایا جائے۔ جی
बहुत शुक्रिया ताहिर जोजियान अपडेट करने के लिए। ईसा खेल में मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज होल्स के ढक्कन गायब हैं, जिसकी वजह से मुतादिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं। इंतजामिया को बारहा निशानदही की गई, लेकिन ताहाल सीवरेज होल्स पर ढक्कन ना रखे जा सके। इसी पर बात करेंगे मुकर्रब खान नियाजी से। मुकर्रब बताएगा। कुल ईसा खेल शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो मेन होल हैं और गटर हैं उन पर जो उनके ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ हादसात का शिकार बन चुके हैं और खुदा न खास्ता किसी वक्त मजीद कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे हमरा एक शहरी मौजूद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुकर्रब भाई। मेन हॉल अलहमजा मार्केट भंडा वाली गली मेन हॉल ते ढकन कोनी ते असां असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैर को अपील करसा मेन हॉल ते जिते जिते ढकन को उस जगह ते ढको रखोन और साथ मोहल्ला मुकर्रब खैर अनायत रसूल दुकानदार के सामने पुली टूटी हुई है ते बराए मेहरबानी फौरी तौर पे पुली को भी मुरम्मत करो, पुली को भी जोड़ो और इन मेन हॉल ते ढकन रखो। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल से ये पुरजोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर जिन मेन होम पर ढक्कन मौजूद नहीं उन पर फौरी तौर पर ढक्कन रखे जाएं ताकि आने वाले हादसा से बच। जी शुक्रिया के लिए। आपको बताएं डेरा गाजी खान के ब्लॉक नंबर 37 शेखा वाली बस्ती का मेन रोड खस्ता हाली का शिकार है। टूटी फूटी सड़क के बायस इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। मौजूद हूँ ब्लॉक 37 शेखा वाली बस्ती के अंदर और इस शेखा वाली बस्ती का जो मेन रोड है ये अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह से रोड के ऊपर गड्ढे मच चुके हैं और रोड बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसके बायस यहाँ पर जो अहले मोहल्ला हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी ना बताइएगा कब से ये मसाइल हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये 8 साल हो गए हैं, 7 साल ये रोड बिल्कुल नाकारा है। इसलिए भाईजान ये हुकूमत वाले आते हैं, वोट लेते हैं, वादे कर जाते हैं, ये कोई वादा पूरा नहीं करता। आप देख लो सारा कोई बारिश कोई भी मसला मसाइल हो, ये सांस की तकलीफ सब चीज़ ये बहुत ही मसला होता है जनाब। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं यहाँ के जो अहले मोहल्ले उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो सियासतदान आते हैं यहाँ पर वोट के वक्त आते हैं और यहाँ पर वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जो अमली काम है वो यहाँ पर होता दिखाई नहीं देता। उनका यही कहना है कि यहाँ पर अगर बारिश आ जाए तो यहाँ पर रोड के ऊपर जो है पानी जमा हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ यहाँ से रोड से रोज़ाना की बुनियाद पर जो धूल मिट्टी उठती है, अगर दोबारा उठता है उससे। जी शुक्रिया आशान बुखारी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं मुल्तान के तारीखी मुकाम किला कासिम बाग में 3 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश। कुदरत के खूबसूरत रंगों ने शहरियों के दिल जीत लिए। नुमाइश के पहले ही रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद अहले अयाल के साथ उमड़ आई। फूलों के मुख्तलिफ रंगों और दिलकश तरतीब बच्चों बड़ों और नौजवानों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया हसन मलिक ने। हसन बताएगा। जी मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर 3 रोज़ा गुले दाऊदी की जो फ्लावर नुमाइश है उसका आज आगाज़ किया गया और इफ्तिताई तकरीब बहुत रंगारंग थी। और उसके साथ साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि शहरियों के साथ साथ फैमिलीज़ की कसीर तादाद ने शिरकत की हुई है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, मतलब हर उम्र की हर कैटेगरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस फ्लावर नुमाइश को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ है इस नुमाइश की वो ये है कि मुख्तलिफ रंग के फूल हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं जो शहरियों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन अरशद गुज्जर आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर ताहद्दे निगाह मुख्तलिफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं या मुख्तलिफ रंग के फूल हैं, मुख्तलिफ इकसाम के फूल हैं, मुख्तलिफ नौयत के फूल हैं। तो ये तमाम तर फूल जो हैं ये शहरियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, शहरियों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर PHA ने फिर जो इसकी सेटिंग की हुई है वो भी कुछ इस तरीके से की हुई है कि शहरी जब तक उन फूलों के करीब नहीं जाते तो उस टाइम तक शहरियों को एक तजस्सुस सा रहता है कि आया ये फूल ओरिजिनल भी हैं या नहीं है। तो हमारे साथ कुछ आउट ऑफ स्टेशन से शहरी आए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से एंजॉय करें, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं और इस सारी नुमाइश को किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम सिंध से आए, हम हर साल इधर आते हैं अपनी फैमिली के साथ, हर साल आते हैं मज़ार पे
अभी मज़ार पे आए हैं, उधर से होके अभी हम पार्क घूमने आए। अभी इधर का मौसम देखा तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे भी इधर आए हैं। यहाँ की रंगीनियाँ देखते देखते हम माशाल्लाह सारा शहर घूम चुके हैं। अभी यही जगह पड़ी जो हमने अभी घूमी है। फूलों की नुमाइश आपको किस तरीके से लग रही है? फूलों की नुमाइश कितनी ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। इसके जगह हमने पहली बार ऐसी जगह देखी है, और ये जो तैयारी है आपकी, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। पहली जिंदगी में हमने पहली दफ़ा ऐसे फूल देखे हैं इधर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्तान जो शहर है ना, वो हमारा पसंदीदा शहर है। हम सिंध से आए, जो गड़ी खुदा बख्श भुट्टो बेनज़ीर का शहर है, और बेनज़ीर को तो ये सारा मुल्तान चाहता है, सारा पंजाब चाहता है, और इस वास्ते हम इधर आए। इसलिए इधर आए हुए हैं। कुछ बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। गुड़िया किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं? अच्छे से। अच्छे से फूलों को देखे? यस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसके साथ आई हुई हैं? अपनी खाला के साथ। फैमिली के साथ आई हुई हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिलीज भी मौजूद हैं, बड़े जवान सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर इस तरीके की जो नुमाइश है, इसका इनेकाद किया बहुत जाना शुक्रिया बहुत। हसन मलिक तफसीलन अपडेट करने के लिए। सीपीओ सादिक अली डोगर ने क्रिसमस कम्युनिटी के नुमाइंदों से 25 दिसंबर के क्रिसमस डे के हवाले से मीटिंग की। मीटिंग में क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम, चर्चिज़ की हिफाजत और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अहमर खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में क्रिसमस के हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल इंतजाम करने के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से कितनी नफरी जो है वो तैनात की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी ऑपरेशन हैदर अली साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं, क्रिसमस का त्यौहार जो है वो बिल्कुल करीब है, 1 से 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, और क्या समझते हैं कि कितनी सिक्योरिटी जो है वो देखेगी और सिक्योरिटी के किस तरह से प्लान किया गया? खुशी के मौके पे अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिल्कुल साथ हैं, और हम चाहते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से जो है अपने इस इवेंट को सेलिब्रेट करें। हम सारे उनके साथ, उन सब पे जो है एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मैकेनिज्म बनाया गया है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको इवेंट को पीसफुल मुनक्किद किया जाए। जो मसीह बरादरी जो है वो क्रिसमस का त्यौहार खुशियों से मनाए और भरपूर अंदाज से मनाए, मुल्तान पुलिस जो है उनके साथ है। जी बहुत शुक्रिया अमर खान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मियांवाली में पुलिस ने 25 दिसंबर के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। 7 चर्च, 3 मकानात और 6 मसीही कब्रिस्तानों पर अहलकार मामूर होंगे। 338 पुलिस अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर के हवाले से मियांवाली पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है। 338 पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर होंगे। 7 चर्चेज हैं, 3 मकानात हैं जहां पर एक मुद्दत से मसीही बिरादरी की जो मजहबी तकरीबात उन घरों में भी मुनक्किद होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मसीही बिरादरी के जो 6 कब्रिस्तान हैं, वहाँ पे भी पुलिस एहलकार जो हैं तैनात होंगे। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इन पुलिस एहलकारान में 4 DSP, 4 इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर, 29 ASI, 11 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की तादाद 195 और 35 लेडी कांस्टेबल जो हैं वो भी ड्यूटी पर मामूर होंगी। 9 एलीट की टीमें जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगी। और उसके अलावा 7 न्यू ईयर नाइट के हवाले से भी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है। चर्चेस पर पुलिस मामूर होगी। उसके अलावा मियांवाली के जो 4 पार्क हैं वहाँ पर भी पुलिस एहलकार जो हैं ड्यूटी देंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अमनो अमान की बहाली के लिए डोल्फन फोर्स और दीगर फोर्सेज जो हैं वो दिन भर मुख्तलिफ सड़कों पर गश्त करेंगी, और इस हवाले से मियांवाली पुलिस जो है अलर्ट रहेगी। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मुल्तान में मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां जारी। घरों में क्रिसमस ट्री और सजावट का सिलसिला जारी। गली मोहल्लों में क्रिसमस के हवाले से पार्टीज का अहतमाम किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, क्रिसमस की तैयारियां जो हैं अरूज पे हैं, और इस वक्त भी मैं घर में मौजूद हूं जहां पर क्रिसमस के हवाले से क्रिसमस ट्री भी बनाया गया है, और इधर घर को भरपूर तरीके से सजाया भी जा रहा है। बच्चे बड़े सभी अपनी शॉपिंग में भी मसरूफ हैं। आगे चल के बात करते हैं, पूछते हैं कि कितनी तैयारी हो गई है, कितनी रह गई है, कितनी तैयारी कर ली है क्रिसमस की? शॉपिंग कर ली है बच्चों की, तो बाकी कुछ तैयारी रह गई वो आज करनी है। आप मुझे बताएं कि क्रिसमस के लिए कैसा जोड़ा बनाया है? लड़कियां जो हैं बहुत ज्यादा इवेंट के लिए एक्साइटेड भी होती हैं, तो कैसे कपड़े पहले बच्चों की शॉपिंग की थी, उसके बाद अपनी शॉपिंग की है,
एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस हैं और इसी तरीके से हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं न्यू, एक दूसरे के रिलेटिव्स के घर विजिट करते हैं, बस इसी तरीके से। आपने कैसे तैयारी की है भाई अपनी क्रिसमस की? मैंने अच्छी की है। अच्छी की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चे बड़े सबने मिलकर ट्री कैसे बनाया और कब से बनाने का आगाज हो जाता है? ट्री बनाने का आगाज जो है ये समझ ले कि 1 दिसंबर से ही हो जाता है। इसके लिए होता है कुछ चीज़ें हमने पहले लेके रखी होती हैं, फिर जिस तरीके से हर साल ट्रेंड थोड़ा चेंज होता जाता है, तो डेकोरेशन की न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती मार्केट में, तो फैमिली के साथ जाते हैं, जो इन्हें बच्चों को पसंद आती है चीज़ें वो बाय करके लेके आते हैं, फिर उसके साथ डेकोर करते हैं हम। जी आप मुझे बताएं, इन सब ने तो तैयारियां कर ली हैं, आपका कितना खर्चा करा दिया इन्होंने अपनी तैयारियों में? अभी कल ही इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये लिया है, सूट लहदा लिए हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमने ना हाइटी भी करनी है, तो ज़ाहिर है आपको क्रिसमस है और इसमें दिल हमारा बहुत बड़ा होता है, और ये आपको पता है कि साल में एक दफ़ा क्रिसमस आता है, तो इसलिए हम अपनी जेबें जितनी है ना वो सारी खोल देते हैं। बिल्कुल, कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सके तो खूबसूरत सा ट्री भी सजाया गया है बच्चे बड़ों सबकी जानिब से, और यहाँ पे जो है घर को भी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। बच्चे बड़े सभी एक्साइटेड हैं क्रिसमस के दिन के लिए, और इसी हवाले से जो है इनका ये कहना है कि आखिरी रात तक। जी शुक्रिया लिशा अपडेट करने के लिए। आपको बताएं भक्कर में क्रिसमस के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का आगाज़। पुलिस लाइन भक्कर में मसीही बरादरी की खुशियों को दोबारा करने के लिए परवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मसीही मुलाजमीन और उनके बच्चों ने भरपूर शिरकत की। DPO भक्कर शहजाद रफ़ी कवानी इस मौका पर मसीही एहलकारों और बच्चों में मिठाई और तोहफ़े तकसीम किए। DPO का कहना था इस्लाम हमें मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। मसीही बरादरी को बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में क्रिसमस की खुशियों से सजी पुरवकार तकरीब। CEO हेल्थ डॉक्टर लियाकत चौहान ने क्रिसमस केक काट कर खुशियों का आगाज किया। मजीद तफसीलात बताएंगे आसिम सदीक। क्रिसमस की आमद है और क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं। CEO हेल्थ अथॉरिटी के दफ्तर ऑफिस में क्रिसमस की खुशियों के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, केक काटा गया। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर लियाकत चौहान ने क्रिश्चियन कम्युनिटी और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाई। लियाकत चौहान साहब, आज क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मैरी क्रिसमस का पैगाम दिया जा रहा है, तो आज क्या पैगाम दे रहे हैं आप? जी, ये स्पेशल मरियम नवाज साहिबा CM की तरफ से डायरेक्शन थी और डिप्टी कमिश्नर रहम यार खान की कि हमें अपने तमाम दफातर में जो हमारे क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ उनकी खुशियों में भरपूर तरीके से शामिल हुआ जाए, और उसी की यहाँ पे हमने तकरीब की है जिसमें पूरा DHA का स्टाफ और हमारे जितने भी हैप्पी क्रिसमस के फ्रेंड्स थे वो सब यहाँ शामिल हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सेलिब्रेट किया है। शुक्रिया। सेलिब्रेट किया है, पैगाम दिया गया है कि तम उनकी खुशियों में तमाम खुशियाँ जो है शामिल हैं, तमाम अफराद यहाँ पे शामिल हैं, और ये केक काट कर उनके मैरी क्रिसमस के साथ ये पैगाम देकर इस तरह की खुशियाँ सबको देखने की नसीब हो। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक अपडेट करने के लिए। आपको बताएं खानेवाल में ज़िले इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों को मनाने के लिए मसीही बरादरी के संग डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मसीही मुलाजमीन के साथ केक काटा और ज़िले इंतजामिया की जानिब से तोहफ़े भी तकसीम दिए गए। आपको बताएंगे खानेवाल में ज़िले इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों को मनाने के लिए मसीही बरादरी के संग डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मसीही मुलाजमीन के साथ केक काटा और ज़िले इंतजामिया की जानिब से तोहफ़े भी दिए गए। खानेवाल ज़िले इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों में मसीही बरादरी के संग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में क्रिसमस के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद की मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। आपको अपडेट करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में ज़िले इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों को मनाने के लिए मसीही बरादरी के संग खानपुर के करीब मोटरवे पर एम्बुलेंस और बस के दरमियान हादसा, जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतें अस्पताल से रवाना कर दी गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली एम्बुलेंस कराची से मैयत लेकर मुजफ्फरगढ़ जा रही थी। जाँ बहक होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक शहर सुल्तान के एक ही खानदान से है। जाँ बहक एम्बुलेंस ड्राइवर का ताल्लुक कराची से था। तमाम मैयतों को आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है, खानपुर के करीब मोटरवे पर एम्बुलेंस और बस के दरमियान हादसा, जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतें अस्पताल रवाना कर दी गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली एम्बुलेंस कराची से ही मैयत लेकर मुजफ्फरगढ़ जा रही थी। जाँ बहक होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक शहर सुल्तान के एक ही खानदान से है। जाँ बहक एम्बुलेंस ड्राइवर का ताल्लुक कराची से था। तमाम मैयतों को आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया। महकमे सेहत का अतायत के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लोधरा में डेप्यूटी DHO डॉक्टर आसिफ अली राना की कार्रवाई। 786 अस्पताल और अल जन्नत मैटरनिटी होम सरभमर कर दिया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे राना आसिफ हनीफ।
جی بالکل، ضلع لودھرا میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی سربراہی میں محکمہ صحت کے افسران عطائیت کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تحصیل لودھرا میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آصف علی رانا نے اپنے سٹاف کے ہمراہ 2 نجی عطائیت خانے جعلی ڈاکٹر کی سربراہی میں چلنے والے میٹرنٹی ہومز اور اسپتالوں کو سیل کیا ہے۔ ایک اسپتال کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آصف علی رانا۔ سر بتائیے گا کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں؟ عطائیت بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ جی السلام علیکم، ایسا ہی ہے، ڈپٹی کمشنر لودھرا اور سی او ہیلتھ لودھرا کی ڈائریکشنز پر تحصیل لودھرا میں ہم نے کوالٹی ہیلتھ کیئر سروسز ہم نے انشور کروانی ہے۔ اس سلسلے میں ہم تمام پرائیویٹ کلینکس، میٹرنٹی ہوم، سرجیکل سیٹ اپس وغیرہ ہم وزٹ کر رہے ہیں۔ ہماری سرویلنس اس کے ریگارڈنگ ہماری سرویلنس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی تیز ہیں، تو ہم یہ انشاءاللہ انشور کریں گے اور کسی قسم کی عطائیت کو ہم جو ہے نا وہ تحصیل لودھرا میں عطائی کو ہم الاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ کسی قسم کی عطائیت کریں جس سے انسانی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہو۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کل سے ہم نے 2 سیٹ اپ جو ہے وہ سیل کر دیے ہیں، ایک الجنت میٹرنٹی ہوم اور ایک ہے 786 الٹرا ساؤنڈ کلینک۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ 2 اسپتال سیل کر دیے ہیں، ایک کا نام ہے الجنت میٹرنٹی ہوم اور دوسرے کا نام ہے 786 ہاسپٹل۔ سو یہ کاروائیاں جاری ہیں اور اس وقت محکمہ صحت کا یہ عزم ہے کہ پوری تحصیل میں جہاں جہاں عطائی بیٹھے ہیں انسانی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں جاری رہیں گی۔ جی بہت شکریہ رانا آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔